How is the life here? It's be just hard. working. It's just working, right? There is Yeah, no life. this is Just all- yeah, working, We make work, money. we eat, we sleep, we work, we eat, we sleep. Yeah, and that's छोटी सी ब्रेक ली थी और तेरी खैर हो जाए साढ़े तीन जाओ बरारे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और खूब जोर शोर से हो रही है। I am. I've been up here 47 years, Yeah. So you fly from here to Anchorage. and then I drive to home. I was talking to someone and they said because our bikes are very dirty, so he asked if we can clean them. He said like it costs $250 an hour. Yeah. Did you see the price of gas here? It's almost $8 a gallon. Yeah, we had all along the way as well, $8. Everything's a gallon. expensive Yeah, up yeah. here. Very, very. Because it either has to be shipped up. Even the water comes from the. Out, we haul the water up. Well, we get our water from the Sag River here, but Yeah. you have to have you have to purify. But a lot of the water is brought up. Yeah. Especially the All the drinking trash water. has to be hauled away. It's like Uh-huh. $5,000 each trip, just to haul the dumpster Yeah. like that out. Yeah. And the bears. Have you seen the bears yet? We've seen the first day near to the Denali National They were Park. here about 3 weeks ago. Oh, they were everywhere. They were all over. There was a mother with triplets, and they were last year's babies because they were larger babies. And they tried to get in the dumpsters and they tried to get Try in to the find the doors. food. How is the life here? It's be just hard. working. It's just working, right? There is Yeah, no life. this is Just all- yeah, working, We make work, money. we eat, we sleep. We work, we eat, we sleep. Yeah, and we work rotations, Okay. and then we go home, and someone takes our place, and then we come back and we do it all over again. So you work here, like for example, 1 month, and then you have 1 month off, right? Yes, sometimes, or I'll come and work 3 here, go home for 3, or I'll come work Okay. 4, go home for 2. But the good thing here is that you can make a lot of money, right? Yes, Okay. yeah. But I noticed there is no restaurant or bar or cafes or anything. There's no so alcohol is not allowed allowed in the here. North Slope, Yeah. girl. It's probably Unfortunately, some days I wish I could have a beer. Usually, a person working here, how much money he can do, like a week or? It just depends on the job. Yeah. But some people up here can make $600,000, $700,000 a year, working only half the year. On a rotation. Yeah. That's a good money. Yeah. That's a really good And money. then there is, I think, a lot less tax in Alaska. There's no state tax in Alaska. No state tax, so it's even better. Yeah, and then now with President Trump, they're not going to tax our overtime. That's where we always got hit because our overtime is where we make our big money, and then we paid a lot more taxes. So now we don't have to pay taxes on our overtime, up to a certain amount. But still, Yeah. I'll take it. But it's well, it was so nice to meet you guys. I have Yeah. to get back to work. Okay. Thank So- you very much. Pleasure It talking was a to you. pleasure to talk to you too. I got to go in here and check out what's going on. Okay. Thank you. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम प्रूडो बे, जिसे डेड हॉर्स भी कहते हैं। कल फाइनली हम लोग यहाँ पे एनकरेज से 5 दिन की राइड करने के बाद पहुँचे हैं और 1000 माइल से ज़्यादा हमने डिस्टेंस कवर किया। इसमें हमने फेयरबैंक्स में 1 दिन रेस्ट किया था, बाकी हमारे सारे राइडिंग के दिन थे। लैंडस्केप
बहुत डाइवर्स था, बड़ी अच्छी राइड रही। शुरू में नेशनल पार्क्स, हाई माउंटेन्स, फिर जंगलात, और लास्ट 70 किलोमीटर प्रूडो बे से पहले मोस्टली फ्लैट था। और फिर हमें अलास्का की हर तरह की वेदर कंडीशन से डील करना पड़ा। बारिश, स्नो, तेज़ हवाएं, मतलब कुछ ना पूछें। एनीवे हमने उस चीज़ को एंजॉय किया, और यही एडवेंचर में होता है जब स्पेशली आप इस तरह के एरिया में पहुंचते हैं। आज का हमारा प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे और वापस जाएंगे फेयरबैंक्स की तरफ। ये तकरीबन कोई 1 से 2 दिन का हमारा बनेगा। मेरे ख्याल में 1 दिन में मुश्किल हो जाएगा। रास्ते में देखते हैं कि किसी जगह पे हम स्टॉप कर लेंगे, कैंपिंग कर लें या होटल वगैरह ले लें। इस शहर में कुछ ख़ास नहीं है सिवाय ये जितने कैंप्स बने, क्योंकि ये इन्हीं लोगों के लिए ये बनाया गया है एरिया। और हमारी एक लोकल ख़ातून से भी बात हुई है, तो वो कह रही थी कि अभी कुछ टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिएगा कि ये जितने भी दरवाजे हैं ना, ये इन्होंने इस तरह के बनाए हुए हैं कि जैसे ही आप इनको छोड़ेंगे ना, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि इधर आ जाते हैं बियर। और एक के पीछे एक दूसरा जो दरवाज़ा है ना, वो इन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं कि एटलीस्ट 2 दरवाजे होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास टॉयलेट्स वगैरह थे और ये रूम थे। बस अपना सामान कुछ रह गया, वो उठा के फिर निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। चेक करें जी, सामने कैराबूज़ हमें नज़र आ रहे हैं रोड के साथ साथ। ये पहले हमारे कैंप के साथ से गुज़रे हैं। क्या खूबसूरत सींग है यार इनके, बहुत ही आला। पूरे टाउन के अंदर एक ही जनरल स्टोर है जहाँ पे सारे ट्रैवलर्स भी आके स्टिकर वगैरह लगाए हैं ना, पिछली वीडियो में आपको दिखाया है। उसके अलावा इधर कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चीप है पीछे की निस्बत ना। पीछे हमने पे किया था 7.4, यहाँ पे 7.14 है। 7.5 पे किया था। ओए होए होए, उन्होंने तो साथ 4 कैन भी रखे हुए हैं जिनको फुल करना है। और ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं इस पेट्रोल स्टेशन के ट्रक्स और उनका वेयर हाउस। अच्छा, ये गैस भी सप्लाई करते हैं। हो सकता है ये बाकी होटल्स वगैरह वालों को ना यहाँ से सारी सप्लाई जाती है। Buena caza, ¿no? Bueno. Sube, sube, sube. चलें जी, ये लेके आए हैं पकड़ के। Was it hard? He's right here. She ran to the river, but she wouldn't die, so we had to get close. Jump on top of it, cut his head. See? You take pictures, yeah, if you want. Yeah. Yeah, get some pictures. देखें जी। Where are you guys from? From Pakistan.
Oh, shit. Yo español. Oh, hablas español. ¿De dónde eres? ¿De Brasil? De España, España. Oh, de España. Oh, sí, bueno. Mi madre es de España. We killed one Yeah. upriver far. And we saw a lot of grizzly bears. Oh, Yeah. grizzly bear. Oh, a lot of big grizzlies. Yeah, it Yeah. was, dude. How far Killed a lot from of here? bears. Far from here, right? Oh, in the oh, river. yeah, I have an airboat. You know, you guys see the airboat? Yeah. Yeah. It's also airboat. Okay. 5 miles off Yeah. any side of the off of the pipeline. It's only bow and arrow. Okay. Yep. 5 miles out there. Yeah. You can use You can rifle, use a- but you can't use a motorcycle or ATV. Nothing right here for 5 miles. Just walk. Just Walk. walk. Puro caminada. See. So you walked 5 miles with the. No. This one right here. This one we shot right here. To use rifle, you need to go 5 miles to shoot. Okay. This is bow and arrow. Bow and arrow, you can do it on the highway. Here, as well. highway, Okay. yeah. No off the highway with No, wheels. no, sir. No off road. Okay, guys, enjoy. Yeah, have a good safe See you. trip, man. Bye. Welcome. Thanks for coming to Alaska. यहाँ पे इतना मच्छर है, इन लोगों की हिम्मत है कि ये इधर खड़े हुए हैं। तो अलास्का में अपने साथ बो और एरो रखना चाहिए कि यहाँ पे रोड के साथ साथ आप शिकार कर सकते हैं। So many flies here, man. Yeah. Oh man, no, it's crazy, huh? Yeah. Seeing the water is fast. सो फाइनली जी आ गया है पास। हमारी किस्मत अच्छी है कि कल यहाँ पे बारिश नहीं हुई और ट्रक बहुत गुजरते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगी सरफेस। हाँ बेहतर है, इस एरिया में तो काफ़ी बेहतर हो गई है। मतलब हाँ स्लिपरी तो है लेकिन फिर भी बेहतर है। थोड़ा ना ख्याल से जाएगा ना तो कोई इशू नहीं है। और दूसरी अच्छी बात यह कि बहुत बड़ा पास नहीं है, 2-3 कर भी हैं फिर बंदा टॉप पे पहुंच जाता है। और 700 सीसी पे इस तरह के पास का मज़ा आता है राइड करने का। आपके पास पावर होती है। 300 होती है तो मैं भी पीछे ही होता, लेकिन अपने फ़ायदे हैं उसके भी। हल्की बाइक है इसकी निस्बत काफ़ी। ये आ गया सामने टॉप, जहाँ पे हमने उस दिन एक छोटी सी ब्रेक ली थी। और तेरी खैर हो जाए, साइड ते ना जा बरारे, इतना भी ना साइड ते जा। सो जी वेलकम टू कोल्ड फुट। हम लोग 8:38 पे यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे बैठ के हम अगला स्टेप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले बाइक्स को फ्यूल अप कर लें। रेस्टोरेंट यहाँ पे है, अगर तो वहाँ से खाना मिलता हुआ तो शायद हम खाना भी यहीं भी खा लें। इधर होटल भी है, अकोमोडेशन मिल सकती है।
क्या क्रेज़ी जी हमारी राइड रही है। आखिरी 70-80 माइल बहुत कमाल की रोड थी, मज़ा आया राइड करने का। और डिनर आ गया, कुछ राइस हैं, बीन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेमन है, उसके अलावा स्वीट्स में है। तो आई थिंक ये अच्छा हमारा डिनर हो जाएगा। यहाँ पे फ़िश की ऑप्शन नहीं थी, बाकी मीट और इस तरह की, क्योंकि ये बुफे हमने लिया है तो जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, पर जितनी भूख लगी है उसके मुताबिक ही खाएंगे। लेकिन एट लीस्ट यहाँ पे खाना जो है मैक्सिकन, मुझे ये लगता है कि बड़ा पसंद किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं मैक्सिकन फूड बड़ा आम है। कल रात को भी ऐसे ही था, आज भी इधर ऐसे है। तो मैक्सिको में ये जो बीन्स है ना, हम लोबिया के ही कुछ काले बीन्स हैं, उसी टाइप के बड़े पसंद किए जाते हैं। सो जी फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा टेंट शरीफ रेडी हो चुका है। 5 से 7 मिनट लगते हैं अगर सिंगल बंदा हो तो इसको लगाने में, 2 हो तो ज़रा 2-4 मिनट कम लग जाएंगे, क्योंकि बड़ा इसका इजी सेटअप है। आज मौसम यहाँ पे अच्छा है, 6-7 डिग्री के आसपास है। रात के टाइम हो सकता है कि 3-4 पे आ जाए, तो सर्दी तो यहाँ पे ज़रूर होगी, लेकिन बारिश की प्रेडिक्शन रात को नहीं है। कल 11 बजे के बाद बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन यहाँ पे मौसम आप कह सकते हैं कि विदिन कपल ऑफ आवर्स आप जब ऐप चेक करेंगे दोबारा से वेदर की, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी चेंज हुई हो। हमने जब आज दोपहर को चेक किया था तो अगले 2 दिन की बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन अभी शाम के टाइम चेक किया तो कल 11 बजे से ऑनवर्ड बारिश की प्रेडिक्शन है। तो कोई पता नहीं है कि शाम को बारिश हो जाए, लेकिन अच्छा वाटरप्रूफ टेंट है, उम्मीद है कि हमें कोई मसला नहीं होगा। I'm dying blowing up this. अच्छा, वैसे हमारे पास टेंट और साथ में मैट्रेस दोनों के पास सेम ही है। चलें जी, फाइनली हमारा सामान वगैरह सारा पैक हो गया। हल्की सी यहाँ पे बारिश हुई है, टेंट भीग गया है, तो जब हम रात को इंशाल्लाह पहुँचेंगे फेयरबैंक्स, वहाँ पे टेंट सुखा लेंगे, क्योंकि अगर टेंट गीला 2-3 दिन 4 दिन पड़ा रहे ना अपने सैक के अंदर, तो वो ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर वो फंगस वगैरह लग जाती है। इसलिए कोशिश होती है कि उसको सुखा के दोबारा पैक कर लेंगे। तो अभी पास में ही है रेस्टोरेंट, वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा मुँह शुद्ध धो के हुलिया वगैरह अपना ठीक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे अगर हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो आज हमारी तकरीबन कोई 6 घंटे की राइड होगी, अगर ब्रेक्स वगैरह दरमियान में ऐड करें तो 8 हो जाएंगी, तो हम इंशाल्लाह शाम तक पहुँच जाएंगे। ब्रेकफास्ट आ गया जी हमारा। आज हमारे पास है फ्रेंच टोस्ट। नॉर्मली अमेरिका में जब कुछ भी आप मंगवाते हैं ना तो काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, लेकिन आज ऐसे लग नहीं रहा कि आपको अमेरिका वाला वो ब्रेकफास्ट मिल रहा है। लेकिन मेरे पास उसके साथ में मैंने योगर्ट रखी हुई थी अपने बैग में, इतने दिनों से खाई नहीं। बाहर का टेम्परेचर वैसे ही वो 3-4-5 डिग्री चल रहा होता है तो ख़राब भी नहीं होती। तो इसके मैंने पे किए हैं $14 ऑलमोस्ट ना। फ्रेंच टोस्ट के साथ में सिरप है और यहाँ पे हमारे पास कॉफ़ी है।
तो आई थिंक हमारा बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर जाके हम खाएंगे क्या नाम है फेयरबैंक्स में। सो जी एज़ एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सुबह 10 बजे की बारिश की प्रेडिक्शन है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और खूब ज़ोर शोर से हो रही है। और आप नीचे मेरी ऑरेंज जैकेट देख रहे हैं, ये मैंने चढ़ा ली है क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी। इतना जब सामान बंदा वो पहन लेता है ना कपड़े 2 3 4 लेयर्स, तो फिर ना उस तरह की मूवमेंट नहीं बॉडी में रहती होती, क्योंकि ये जो जैकेट है वो ज़रा टाइट हो जाती है। लेकिन खैर हमें ज़रूरत है इन कपड़ों की, इसके बगैर हमारा पहुंचना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा फ्यूल था वो हमने बाइक्स के अंदर डाल लिया है, और बाकी जितना चाहिए था वो हमने फ्यूल अप कर लिया। तो यहाँ से तकरीबन कोई 150 माइल के बाद ना फ्यूल स्टेशन आएगा, तो वहाँ पे हम इसको फ्यूल करके फिर फेयरबैंक्स पहुँच जाएंगे। यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंसिव है, इसलिए हमने कहा जो अपने साथ कैरी कर रहे हैं वो वापस फेयरबैंक लेके जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से हम दोबारा फ्यूल अप कर लेंगे। अपने को 10 15 20 डॉलर बचाते हैं। तो बस अभी क्या करें, बारिश तो हो रही है लेकिन हमें निकलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सखार लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। देखते हैं कि आज रोड्स कैसी रहती हैं। जब बारिश हो जाए तो उसके बाद कीचड़, मट्टी और साथ साथ थोड़ी स्लिपरी भी हो जाती हैं। हीटिंग ऑन कर लें, हाथ अभी ठीक है, लेकिन अगर भूल गया हीटिंग ऑन करना तो फिर ये ठंडे हो गए ना, गर्म होने में टाइम लगेगा। कल देखें कितना कमाल का मौसम था और आज हमें अब इस तरह का मौसम मिलेगा। यहाँ पे लगता है या तो किसी बाइकर का एक्सीडेंट हुआ है, लग ऐसे रहा है कि एक्सीडेंट हुआ और बाइक अपनी छोड़ के चला गया। तो जब हम गए थे तब यहाँ पे कोई भी नहीं थी बाइक। ओए होए होए, मुझे लगता है बड़ा जालिम किस्म का एक्सीडेंट हुआ है बेचारे का। अल्लाह करे कि खैरियत से हो। हेलमेट उलमेट सब कुछ टूटा पड़ा था। ट्रियम्फ टाइगर 800 थी मेरे ख्याल में ये। सो वेलकम बैक टू फेयरबैंक्स। 5 दिन के बाद हम लोग वापस यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा कार वॉश पे, ताकि सबसे पहले बाइक को साफ़ करवाया जाए। बाकी काम हम फिर देखते हैं। ये सामने है मेरे ख्याल में। सेट है, यहाँ पे साफ़ हो जाएगी।
सो फाइनली हमारी बाइक साफ़ हो चुकी है और पीछे चेक करें क्या खूबसूरत रेनबो बन रही है, कमाल। एक भी नहीं, दो हैं। साफ़ होके दोबारा ज़रा खूबसूरत लगने लगी है। बाइक्स तो साफ़ हो गई हैं, अब हमने अपने आप को भी साफ़ करना है। सो साफ़ करवाने के जी हमने यहाँ पे पे किए हैं $17। और ये भी नहीं है कि हमने को आधा घंटा लगाया है, 15-15 मिनट हमने इस्तेमाल किए। 15 भी नहीं, मेरे ख्याल में 12 मिनट मैंने की है, तो 11-12 मिनट ही उसने की है। तो हम अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा पे। सो जी हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, मशरूम्स और उसके साथ ब्लैक ऑलिव्स। उस दिन हमने पिज़्ज़ा खाया था, हमें भूख उस दिन भी बड़ी लगी थी, लेकिन पिज़्ज़ा भी अच्छा है इनका। और ये $10 का मिला, सस्ता भी है, मतलब $10 यहाँ पे सस्ता है। यह जी हमारा अपार्टमेंट जिसमें आज हम फेयरबैंक्स में स्टे कर रहे हैं। ये रूम मेरा है और इसके साथ है, इसकी हमने पे किए हैं $140। तो अभी तक आई थिंक वन ऑफ द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाइज देखा जाए कि 2 रूम हमें मिले हुए हैं और ये अपार्टमेंट हमें रेंट पे मिल गया था। तो खैर एनीवे अभी आराम से रेस्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।